جو پہلا میسج تھا بتا سکتے ہیں ایک، اس میں صرف ایک ہی میں نے کہا تھا یہ فکرہ آپ کو یاد رہے. ہم خدا کو اس لیے دیں کہ خدا نے ہمیں دیا. ہم خدا کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں دیا ہے. اور سیکنڈ میسج میں جی جو پچھلے ویک میں میسج تھا اس میں بھی ایک فکرہ تھا، اگر کوئی بتا سکے تو. جی دینے والوں کو خدا فراموش نہیں کرتا. خدا دینے والوں کو بھولتا نہیں ہے. آج ایک اور سینٹنس آپ کے لیے حوالہ ہے ہمارے پاس 2 کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 7 آیت. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور اس لیے عزیز رکھتا ہے کیونکہ خدا خود بھی خوشی سے دیتا ہے. خداوند خوشی سے دینے والے کو اس لیے عزیز رکھتا ہے کیونکہ خود وہ خوشی سے دیتا ہے. اس نے انسانوں کو سب کچھ خوشی سے دیا. اس نے اپنا بیٹا بھی خوشی سے دیا، نجات بھی خوشی سے دی. وہ اپنا فضل بھی خوشی سے کرتا ہے، وہ رحم بھی خوشی سے کرتا ہے. لاچاری سے نہیں کرتا، دریغ کر کے نہیں کرتا، بلکہ اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا فضل لمٹ لیس ہے. کوئی بھی اس میں کمی یا حد موجود نہیں ہے. خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. یہ رویے کی بات ہے، لاچاری سے نہیں، دریغ کر کے نہیں، خوشی سے. کوئی آپ پہ پریشر نہیں ہے، کوئی نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بھی دیں خوشی سے خداوند کو دیں، اور یہ جان کر دیں کیونکہ خداوند نے بھی مجھے خوشی سے دیا ہے. خداوند نے سب کچھ ہمیں خوشی سے دیا ہے. یہ تو آج کا جو سبق تھا ہم نے کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. پہلا سبق ہم نے یاد رکھا تھا ہم خدا کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں دیا ہے. دوسرا سبق یہ تھا کہ خدا دینے والوں کو فراموش نہیں کرتا. تیسرا سبق یہ ہے کہ خدا خوشی سے دیتا ہے، اس لیے ہم بھی خوشی سے دینے والے ہیں. خدا خوشی سے دیتا ہے اس لیے ہم بھی خوشی سے دینے والے ہیں. اس کو کبھی بوجھ نہ سمجھے، اس کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم پر جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے سختی سے یا کیسے بھی. یہ لاگو نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے، یہ آپ کے دل کی بات ہے. آپ کے دل میں جب خدا ڈالتا ہے تو آپ خدا کو دیتے ہیں. میرے لیے آج ہمارے لیے جو آج پیغام ہے وہ چیپٹر 8 اور اس کی فرسٹ 5 ورسز ہے. 2 کرنتھیس چیپٹر 8 اور اس کی 7 ورسز. ہم خداوند 5 ورسز پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے. آبے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خوراک اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا. اسی واسطے ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے. آمین. 7ویں آیت پلیز. بس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. آمین.
कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल ये पैगाम देने के बारे में देता है, और आगे जो हवाला हमने पढ़ा उसमें वो इसका खास जिक्र भी करता है कि कैसे देना है। और यहाँ पर वो एग्जाम्पल मकदूनिया की कलीसिया की एग्जाम्पल उन्हें देता है। मकदूनिया ये ग्रीस में जो कदीम यूनान था उसकी रियासत थी, और ये वही रियासत है जो सिकंदर आजम की थी, और जिस सिकंदर आजम को आप जानते हैं उसने तकरीबन पूरी दुनिया पर क्या की, हुकूमत की। मकदूनिया और कुरिन्थस या क्रंथियों ये ग्रीस के अंदर ही है, ये यूनान के अंदर है, एक नॉर्थ साइड में है, एक साउथ साइड में है। और मुकद्दस पौलुस क्रंथियों की कलीसिया को मकदूनिया की कलीसिया की एग्जाम्पल जो है वो देता है, देने के ताल्लुक से। और बात वो करता है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। रोमन एम्पायर ने जब ग्रीस पर कब्जा किया तो ये जो इलाका है ये साउथ का इलाका है, और ये ज्यादा जो है इस इलाके में फसल बहुत ज्यादा होती, और वो उनकी सारी फसल और सब कुछ वो ले जाते थे, और उनके पास बहुत कम बचता था। जैसे आजकल पाकिस्तान की हुकूमत टैक्सों में बहुत कुछ ले जाती है और हमारे पास बहुत कम बचता है। सैलरी पे टैक्स है, फिर जो सैलरी आपके पास आती है फिर उस पे टैक्स है, फिर टैक्स पे टैक्स, पता नहीं क्या क्या है। तो ऐसे ही हालात बनते हैं। लेकिन वो कहता है बड़ी के मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। अब हद से ज्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि ये फजल के तहत दे रहे हैं, ये शरीयत के तहत दे नहीं रहे। ये किसके तहत दे रहे हैं? फजल के तहत दे रहे हैं। और ये इस बात को जानते हैं कि खुदावंद ने खुशी से दिया है, और अपनी जरूरतों को भी पीछे रख कर ये खुदा को देते हैं। और हमें यहां पर यह बात नजर आती है कि पौलुस कहता है मैं गवाही देता हूं, मैं मकदूनिया के लोगों की क्या देता हूं? गवाही। मैं उनका क्या हूं? गवाह। गवाही जो बंदा छोड़ भी जाता है तो बंदा फंस भी जाता है। जब आप किसी की गवाही देते हैं, तो जब आप किसी की हक में गवाही देते हैं तो चांस होता है कि जज क्या कर दे? छोड़ दे। लेकिन जब आप किसी की हक में गवाही नहीं देते तो इसका मतलब है कि उस गवाही के तहत ही उसका फैसला जो है वो होता है। तो मुकद्दस पौलुस कहता है मैं गवाही देता हूं, उन्होंने मकदूर के मुवाफिक बल्कि मकदूर से ज्यादा दिया है। अब मकदूर के मुवाफिक, मकदूर क्या होता है? हसीयत, एबिलिटी, हसीयत। मसलन अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मेरी हसीयत चले करते हैं 20 देने की या 5 देने की, तो उन्होंने अपनी हसीयत से क्या किया है? अपनी हसीयत से उन्होंने खुदा को क्या दिया है? अब हमारी हसीयत क्या है? हम पैगाम तो हमारे लिए है, मकदूनिया के लोग तो कर चुके हैं, पैगाम तो आज के चर्च के लिए है, आज हमारे लिए है, हम सबके लिए है। हमारी हसीयत क्या है? मेरा ख्याल है जब हम क्रिसमस पे सूट पहनते हैं तो एक नॉर्मल फैमिली
कि कपड़ों मेरी फैमिली नॉर्मल है, तो मेरी फैमिली नॉर्मल, मैं अपनी फैमिली की अगर बात करूं तो 60-70 हज़ार रुपये कपड़ों पे लग जाता है। इसका मतलब है ये मेरी क्या है, हैसियत। अगर मैं 5,000 के कपड़े पहनता हूं, मेरे खाने कैसे हैं, मेरा लिविंग स्टाइल कैसा है, मैं कैसे लोगों में उठता बैठता हूं, तो वही मेरी क्या है, हैसियत है। या जो कुछ मेरे पास आता है वो मेरी क्या है, हैसियत है। तो कहता है उन्होंने अपने मकदूर के मुताबिक नहीं, बढ़ के उससे और हालत क्या है, गरीबी है, तकलीफ में है, मुश्किलात का शिकार है। रोमन एम्पायर उनकी फसलों को, उनकी चीजों को ले जाते हैं, उनके पास पूरा उन्हें मिलता भी नहीं है। जितनी मेहनत करते हैं उतना उन्हें मिलता भी नहीं है। लेकिन मसीह के साथ मोहब्बत, मसीह के काम के साथ मोहब्बत इस कदर ज्यादा है कि वो अपनी मुसीबत की बड़ी आजमाइश में, ये बड़ी आजमाइश है, आप मेहनत करें और आपको आपकी मेहनत का हासिल ना मिले। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जब वो काम करते हैं तो जब उनको शाम को उनका ठेकेदार या मालिक दिहाड़ी नहीं देता तो सम टाइम वो क्या करते हैं, लड़ने की हद तक भी पहुंच जाते हैं। मुसीबत की बड़ी आजमाइश में मुसीबत है। रोमन्स उनका सब कुछ क्या करते हैं, ले जाते हैं, लेकिन जो कुछ उनके पास बचता है उस बड़ी आजमाइश में भी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है, हद से। अब मुझे इस हद का नहीं पता कि हद क्या होगी, लेकिन वो कह रहे हैं उसने इसको हद से क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। कोई बच्चा अगर भाई को सीट दे दे, अगर कोई बच्चा उठना चाहे तो ये हमारे बड़े जो बच्चे मेरी तरह जो स्ट्रांग है वो देखा करे, चलो मैं तो सोफे में बैठ जाता हूँ, मेरी सीट को नहीं लेता। तो जो जब बड़ा कोई आ जाता है तो जो बच्चे होते हैं उनको चाहिए कि वो क्या दे दें, सीट दे दें। और इंसान की किताब और शरीयत में उसने सिखाया कि जब सफेद बालों वाला तेरे पास तो उठ खड़ा हो, उसकी क्या कर, इज्जत कर। तो मेरे भी सारे वैसे सफेद हैं, मैं काले कर लेता हूँ, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू भाई जी, काका, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने अपनी गरीबी में, अपनी कमजोर हालत में, अपनी आजमाइश में, अपनी तकलीफ में जो कुछ उनके पास है उन्होंने हद से ज्यादा उसको कर दिया। सखावत को, गिविंग को उन्होंने क्या कर दिया, हद से ज्यादा कर दिया। यहां एक और खास बात इस पैसेज में मैं करना चाहता हूं, लेकिन इसको मैं बाद में इसका साथ आप देखेंगे। आप मरकस 12 बाब में जाएंगे तो आपको एक बुढ़िया के 2 सिक्के नजर आएंगे। मकदूर पे बात करते हैं तो उन सिक्कों की भी बात जो है आप कर सकते हैं कि लोग हैकल में क्या डाल रहे थे, चंदा डाल रहे थे। मरकस 12 बाब उसके लास्ट पोर्शन में, लास्ट पैराग्राफ जो है वो गालमन 41 से 44 वर्ष तक आपको मिलेगा। तो हैकल में लोग क्या डाल रहे हैं, चंदा डाल रहे हैं। बहुत सारे अमीर कबीर, बहुत लैंडलॉर्ड भी होंगे। इस्राएल में वैसे लोग जो थे वो काफी, जो इस्राएली लोग थे वो काफी अमीर थे। उनका गरीब भी हमसे बहुत अमीर होता है, उनका गरीब भी हमसे क्या होता है, बहुत अमीर होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत जो है वो एडमायर करते हैं और एक दूसरे की बहुत जो है वो हेल्प करते हैं। तो वहां पर जब वो चंदा डाल रहे तो क्राइस्ट वहां पर मौजूद है, यीशु मसीह वहां पर देख रहे हैं। तो उसने कहा, बुढ़िया ने क्या डाला, 2 दमड़ियां डाली।
दो दमड़ियां मेरा ख्याल है उनका सबसे जो छोटा पैसा है वो दमड़ी है। तो उसने 2 सिक्के 2 दमड़ियां डाली, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? इसने सबसे ज्यादा दिया। क्यों उसने कहा सबसे ज्यादा दिया? क्योंकि सबने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया है, सबने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया है। लेकिन उसने अपनी गरीबी और अपनी मुताजी और अपने नंगेपन की हालत में उसने अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा दिया है, क्योंकि जो कुछ उसके पास है उसने सब दे दिया है। वो 1 दमड़ी डाल सकती है, 1 दमड़ी से उस दिन का खाना शायद खा सकती है, लेकिन उसने सबसे ज्यादा डाला है। इसका मतलब है कि हैसियत पे बात आती है, मकदूर पे बात आती है। अगर मेरी हैसियत 5 रुपए देने की है, तो फिर अगर मैं 10 देता हूं तो इसका क्या मतलब है? मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर ज्यादा दिया है। लेकिन मेरी हैसियत अगर 100 देने की है और मैं 5 देता हूं तो इसका क्या मतलब है? मैंने अपनी हैसियत से बहुत कम दिया है। बात क्वांटिटी पे नहीं है, बात क्या है? देने पर है। हाँ, आपके पास जो कुछ है, जब आप उसमें से देते हैं तो फिर खुदा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है? बरकत देता है। अगर खुदा ने उस बुजुर्ग या गरीब बेवा की तारीफ की है तो इसका मतलब है फिर आसमान के खजाने भी इसके लिए खुल गए। खुदा यीशु मसीह जब तारीफ कर दे तो इसका मतलब है फिर कुछ कमी नहीं है। एलिया को उस बुढ़िया ने, उस गरीब बेवा ने रोटी दी, फिर अलीशा को भी दी थी, तो उनकी कुपियों में तेल भर गया, मटियों में क्या आ गया? एक तो बड़ी कर्ज खा थी, उसने कहा बर्तन ले आ, इधर से भी उधर से भी, सास से भी इधर से भी बर्तन इकट्ठे कर ले। तो वो बढ़ना शुरू हो गया। खुदा के बढ़ाने का तरीका और है। हम जब बढ़ते हुए को अपने तौर से उसको मैयर करते हैं तो हमारे तरीके क्या है? और ब्लेसिंग, बरकत जब हमारे साथ होती है तो थोड़े माल में भी हम सेटिस्फाइड होते हैं। जब बरकत हमारे साथ नहीं होती, सब कुछ होने से भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ईमान के साथ जीना, ईमान के साथ जिंदगी बसर करना, खुदा से मोहब्बत करना, खुदा के लिए जिंदगी बसर करना बहुत अहम है। तो यहां पर एक और बात इस हवाले में, इसकी 5वीं आयत में वो कहता है, और हमारी उम्मीद के मुवाफिक नहीं दिया, बल्कि अपने आप को पहले खुदा के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सुपुर्द किया। When you give to the Lord, पहले अपने आप को खुदा के हवाले करें, पहले वो इस बात का इकरार करें कि खुदावंद ये सब कुछ तेरा है, इट्स योर, तूने दिया है, खुदावंद ये सब कुछ तेरा है। पहले उन्होंने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया। उस गरीब कलीसिया ने, मकदूनिया के लोगों ने मुसीबत की हालत में, आजमाइश में, सख्त गरीबी में उन्होंने अपने आप को क्या किया? खुदा के सुपुर्द किया। जब हम अपना सब कुछ खुदा के सुपुर्द करते हैं तो याद रखिए, जिसके हम सुपुर्द करते हैं वो चीजों को मल्टीप्लाई करने की कुदरत रखता है। जो चीजें मौजूद नहीं वो उनको ऐसे बुला लेता है गोया के वो मौजूद है, पहले से मौजूद है। मैं अक्सर सोचता हूं, हम अपने सारे काम करके सबसे बाद में खुदा को देते हैं। हमने हमारी कैलकुलेशंस हैं, ये हमारा किराया जाएगा, ये हमारे बिजली के बिल जाएंगे, ये हमारी ग्रॉसरी आएगी, ये फलां आएगा,
اور اب یہ جو بچ گیا ہے اس میں سے ہم کس کو دیں گے؟ سپرد کیجئے اپنے آپ کو خدا کے. سپرد کرنے کا مطلب ہے خدا پر یقین رکھنا، خدا پر ایمان رکھنا. پچھلے سال ہمارے چند بچوں نے خدا کے سپرد کیا اپنے آپ کو. میں نام لے سکتا ہوں. انہوں نے دلیری سے خدا کو دینا شروع کیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ اچھی فصل کو کاٹیں گے. یہ بیج کی مانند ہم بو رہے ہیں. بیج جب بوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں فصل کی امید ہوتی ہے. فصل کو بڑھانے والا، فصل کو اگانے والا، پھل کو لانے والا کون ہے؟ خدا ہے. اور ہم اس پر کیا کر رہے ہیں؟ یقین کر رہے ہیں. اور جب ہم خدا پر یقین کرتے ہیں تو ہمارے وہ کام بھی ہوتے جاتے ہیں جو ہم اپنی قوت سے، اپنی ابیلٹی سے، اپنے اثر و رسوخ سے جو ہم نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمارے لیے ہوتا جاتا ہے. اور پتہ نہیں وہاں سے ہمیں فیورز ملتی ہیں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. خدا، پچھلے میسج میں میں نے کہا کہ خدا آپ کے دشمنوں سے آپ کو لے کر دے گا. وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے. ہم فضل میں رہتے ہیں، خدا کا فضل ہم پر ہے، اس کی حضوری ہماری زندگیوں پر موجود ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے وعدے سچے ہیں. وہ ہمارے دشمنوں کو دوست میں بدلتا ہے. وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے کیا بچاتا ہے؟ سو لاچاری سے نہیں، دریغ کر کے نہیں، خوشی سے دے، کیونکہ خداوند خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ آخری بات آج کے میسج میں 7ویں آیت، اور میرا خیال ہے یہ بہت الارمنگ ہے. اپنی بائبلز پر نظر کیجئے. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو نظر کیجئے 7ویں آیت پر. یوشع بھائی ایک بار ہمارے لیے پڑھیے. بس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. اب وہ کرنتھس کی کلیسیا کو مقدونیہ کی کلیسیا کی اگزامپل دے کر یہ بات کرتا ہے. بس جیسے تم ہر بات میں ایمان، اے کرنتھس تم ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، برتری لے گئے ہو. کس میں لے گئے ہو؟ ایمان میں لے گئے ہو کرنتھیوں، کلام میں لے گئے ہو کرنتھس، علم میں لے گئے ہو، پوری سرگرمی میں لے گئے ہو، بڑی جوش سے گیت گاتے ہو، روح سے بھرے ہوئے ہو، روحانی جوش سے بھرپور ہو. اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. اگزامپل کن کی وہ کوٹ کر رہا ہے؟ مقدونیہ کی. کرنتھس کو کہہ رہا ہے، کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے تم ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت، ان کاموں میں سبقت لے گئے ہو، ان کاموں میں برتری لے گئے ہو، ان کاموں میں انعام کے حقدار ہو. ویسے ہی جیسے ان کاموں میں، جیسے ایمان میں، کلام میں، علم میں، پوری سرگرمی میں، روحانی جوش میں، گیت گانے میں، دعائیں کرنے میں، محبت میں ہم سے سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی سخاوت میں بھی کیا لے جاؤ؟ سبقت لے جاؤ. یہ بہت الارمنگ ہے. اور یہ ان کو ایک ایگزامپل بھی مقدس پالوس دے رہے ہیں. اور آج ہمارے لیے بھی یہ ایگزامپل ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمیں کلام کے بڑے بڑے رازوں کا پتہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی عقل ہے، بڑی سمجھ ہے، کلام ہمیں بڑا آتا ہے. ایسے ہفتے پادری صاحب نہ بھی سنان ساڑا کام چل جائے گا، سانو پہلے ہی پتہ ہے. وہ کہتا ہے بڑے سرگرم ہو، ہم بڑی پرجوش دعائیں کرتے ہیں، ہم بڑی جوش سے ورشپ کرتے ہیں، ہم گاتے ہیں، ہم ناچتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں.
और हम एक दूसरे से मोहब्बत को भी क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। कहते हैं सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, सब अच्छा है, कलाम जानते हो अच्छा है, ईमान जानते हो अच्छा है, सरगर्म हो अच्छा है, रूहानी जोश से भरे हुए हो अच्छा है, मसीह की मानत दूसरों से मोहब्बत रखते हो अच्छा है। लेकिन इस काम को भी वैसे ही क्या कर दो, अच्छा कर दो। तो थिंक अबाउट इट, इसके बारे में जरूर गौर कीजिए। हम कैसा ईमान रखते हैं, हमारे अंदर कैसा ईमान है, हम कैसे खुदा के कलाम को जानते हैं और कैसे खुदा के कलाम को लेते हैं, और कैसे हमारी खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत है, कितना हमें इल्म है, इंसानी इल्म है, हमें मुआशरती इल्म है, हमें दूसरी चीजों का इल्म है, कलाम का इल्म है। और जब हम गाते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है, बड़ी दिलेरी मिलती है। कहता सब अच्छा है, सब अच्छा है, तुम सबकत ले गए हो, ऑल इज गुड, सब बेहतरीन है, लेकिन खरात में भी क्या ले जाओ, सबकत ले जाओ। ये आखिरी वो सबक ग्रंथस की कलीसिया को ये बात वो कहता है, मकदूनिया की कलीसिया की मिसाल देकर। आज हम कहते बाहर से बड़ा पैसा आता है, वो समझे वो मकदूनिया वाले हैं, वो क्या है, मकदूनिया वाले। तो हम पाकिस्तान वाले केड़े हैं, ग्रंथस वाले। पाकिस्तान वाले केड़े असी, करंचियों वाले। तो मकदून, हाँ जी, हाँ जी, ये जाना यरूशलेम में। तो वो कहता है उनकी तरह तुम भी क्या ले जाओ। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, कर दूं सवाल अगर इजाजत दे दो। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जो खुदा को देता हो और कभी कमी का शिकार रहा, कोई ऐसा शख्स जो खुदा को देता हो और कमी का शिकार रहा, वक्त पर उसे ना मिला, वक्त पर उसे ना मिला, खुदा ने प्रोवाइड ना किया। खुदा जुम्मा लेता है, खुदा तेरा जिम्मेदार है, खुदा तेरी परवरिश करता है, खुदा तेरा जिम्मेदार है। हालेलुया, खुदा जिम्मेदार है। और फिर हमारी गिविंग्स का भी खुदा क्या है, जिम्मेदार है। उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, खुदा के सुपुर्द कर दिया, अपने माल को, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया। मैंने कहा था मैं फजल के बारे में बात करूंगा, मैं फजल के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं शरीयत की दहयकी के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं जब गिविंग का मैसेज दूंगा इस साल में, तो मैं शरीयत की बात नहीं करूंगा, मैं फजल की बात करूंगा। अपनी कमजोर हालत में भी उन्होंने अपनी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया, हद से ज्यादा। हमारे खुदा की कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास जो है हम उस हद को बढ़ाएं, उस हद में ना रहें, उस हद को बढ़ाएं। और जब हम उस हद को बढ़ाएंगे तो फिर खुदा भी अपनी उस हद को जो मुकर्रर हुई है उसको बढ़ा देगा, खजाने खोल देगा, आसमान खोल देगा, बरकत आएगी, ताजगी आएगी, सेहत आएगी। जो पैसा बीमारियों पे लग रहा है वो बीमारियों पे नहीं लगेगा। जो कभी कभी ऐसे मेहमान आ जाए 5-10 हजार लगे ना, वो भी नहीं लगेगा, मेहमान भी फोन करके आएगा। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम भी मकदूनिया की कलीसिया की मानद बने, अपनी गरीबी और अपनी तंगी में अपनी सखावत को, अपने देने को हद से ज्यादा करें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आइए सरों को खुदावंद के हुजूर झुका लें।